چلیں آج اس کو ہم جو ہے یہ ٹاپک اس کو کمپلیٹ کریں گے. In last class we have started integrated weed and pest management. اس میں ہم نے جو کلچرل کنٹرول اینڈ جو وہ کیا ہم نے مختلف ہم نے جو ہے پریونٹیو میتھڈس کے ذریعے جو ہم وہ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا. نیکسٹ از دا بایولوجیکل کنٹرول اینڈ دین کیمیکل کنٹرول. بایولوجیکل کنٹرول میں مینلی ڈفرنٹ بایو ایجنٹس آر یوزڈ. آپ لیونگ ایجنٹس آپ یوٹیلائز کرتے ہیں فار دا بایولوجیکل کنٹرول آف ویڈز اینڈ پیسٹ. تو اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا کوئی آپ کے سامنے کوئی ایگزامپل آپ جانتے ہیں جو پرٹیکولرلی جو ہے نا ویڈز کے حوالے سے کوئی جو ہے نا ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کوئی چیز یوز کی جا رہی ہو جو بایو ایجنٹ کے طور پہ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا جو ویڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بایو ایجنٹ یوز کیا جا رہا ہو ایز اے بایولوجیکل کنٹرول؟ کبھی دیکھا نہیں ہے سر. یہ کبھی فش پونڈ کا آپ نے سنا ہو؟ فش پونڈ میں جو ہے نا جو نیچے وہ مختلف طرح کی جو ہے نا ایک ویڈز ہو جاتی ہیں، گراس وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک فش یوز کی جاتی ہے، اسے گراس کارپ کہا جاتا ہے. جو تالاب ہوتے ہیں نا تو وہاں اندر جو گھاس شاس اگ جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گراس کارپ فش یوز کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایز اے بایولوجیکل کنٹرول کی ایک ایگزامپل ہے. اب اس میں ڈفرنٹ طرح کے جو بایو ایجنٹ ہے اس میں انسیکٹس بھی آپ یوز کرتے ہیں. یو یوز ڈفرنٹ پلانٹ پیتھوجنس. ہیئر یو کین سی کارپ فش دیٹ از گراس کارپ. ایک سلور کارپ بھی ہوتی ہے، گراس کارپ بھی ہوتی ہے. تو یہ گراس کارپ جو ہے نا یہ فش پونڈ کے اندر جو ہے نا یہ یوز کی جاتی ہے، ایون اس کو جو ہے نا یہ گھاس وغیرہ کے لیے. دین سرٹین کمپیٹیٹیو پلانٹس یہ بھی آپ یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ جو ہے بایو ایجنٹس کی ڈفرنٹ کائنڈز ہیں جو کہ یوٹیلائز کی جاتی ہیں ایز اے بایولوجیکل کنٹرول ایجنٹس. یہاں آپ کے سامنے پکچر میں یہی دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک انسیکٹ کو یوٹیلائز کیا ہوا ہے. جیسے آپ بایولوجیکل کنٹرول کے دیکھتے ہیں کہ لیڈی برڈ بیٹل ہے، دیٹ از دی نیچرل اینیمی فار دی ایفڈز، تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے فار دی بایولوجیکل کنٹرول. تو مین جو اس میں تھیم یہی ہے کہ آپ نے ڈفرنٹ بایو ایجنٹس یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ جو پرٹیکولر یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈز ہوتی ہیں نا یہ چونکہ اس لیول کے اندر آپ کو بکس کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے تو یہ جسٹ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے وہ فینومینا ہے کیا. باقی آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے یہ بکس کے اندر اسٹڈی کر کے پھر آپ کو جو ہے نا آگے چلنا ہوتا ہے. اب نیکسٹ از دی کیمیکل کنٹرول. کیمیکل کنٹرول کے اندر جو ہے ہم ڈفرنٹ طرح کی جو ہے وہ ہربیسائڈز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں. اینڈ جو ویڈ کنٹرول کے حوالے سے اور انسیکٹ کے لیے بھی ڈفرنٹ انسیکٹیسائڈ یوز کی جاتی ہیں. اب دیکھیں گے کہ ویڈز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں دیٹ از some are selective herbicide and some are non-selective herbicides. تو selective herbicides کون سی ہوتی ہیں؟ سر جو خاص یعنی جو اسپیسیفک ہوں کسی ویڈس کے لیے. ہاں جی، سلیکٹو جو ہے وہ پرٹیکولرلی جو خاص جو ہے نا جو ویڈز کے لیے مثلا براڈ لیف ویڈز کے لیے علیحدہ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو کہ وہ ایسی ہربیسائڈ جو کہ ان کو پرٹیکولرلی خاص قسم کے ویڈز کے لیے یوز کی جائیں دیٹ ول بی سلیکٹو. اور نان سلیکٹو وہ ہوتی ہے جو کہ تمام پلانٹ لائف کو ختم کرتے ہیں. تو سلیکٹو میں یہاں دیکھیں گے ہربیسائڈ ول کل ویڈز in a germinating or growing crop without harming the crop. اب اس نے کیا کرنا ہے کہ جو سلیکٹو ہے یہ کراپ کو نقصان نہیں پہنچانا. جو جسٹ ویڈز ہیں اس کے لیے سلیکٹو ہے، ویڈز کو نقصان پہنچائے گی، ویڈز کو ختم کرے گی لیکن کراپ سیف رہے گی. جو نان سلیکٹو ہے وہ جتنی پلانٹ لائف ہے چاہے وہ کراپ ہے یا ویڈز ہے دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو دونوں کو نقصان پہنچائے گی. جیسے راؤنڈ اپ ہے، اب راؤنڈ اپ کا آپ سپرے کریں گے تو وہاں کوئی بھی جو ہے نا کراپ میں موجود ہے تو وہ بھی جل جائے گی. اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو پروٹیکٹڈ اس کے اندر کرنا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ ویڈز افیکٹ ہو.
تو राउंडअप इज द नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड एंड सिलेक्टिव में जो है बहुत सारी आ जाती हैं, जिसमें जैसे बैक्ट्रोल सुपर और इस तरह की है, जो कि आप जो है ना गंदम के अंदर बैक्ट्रोल सुपर वगैरह ये जो तमाम हैं सिलेक्टिव हैं कि ये क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये उन वीड्स के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई हैं कि वीड्स को जो है ना सिर्फ वो नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये उसमें एक कैटेगरी सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव जो है, जस्ट ये कैटेगरी हर्बिसाइड की है। ये एक जस्ट आपको इंसेक्ट के हवाले से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का वो दिखाया गया कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आपने जस्ट कोई एक सिंगल मेथड नहीं यूज करना होता, यू हैव टू यूज मल्टीपल मेथड्स। तो वो उसमें आप प्रिवेंशन से लेकर आप कल्चरल और देन केमिकल और बायोलॉजिकल इन तमाम मेथड्स को जो है वो आप जो है ना वो यूज करते हैं ताकि इंसेक्ट की पॉपुलेशन को जो है वो कम से कम किया जा सके। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एन इकोलॉजिकल अप्रोच टू एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल दैट इंटीग्रेट्स, मींस कंबाइन कर देता है, दैट इंटीग्रेट्स पेस्टिसाइड्स इनटू मैनेजमेंट सिस्टम incorporating a range of practices for economic control of pests। तो रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या हैं, डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स। तो बाकी जो तमाम मेथड्स हैं उसमें पेस्टिसाइड को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि आप उसको जो है पेस्ट को इकोनॉमिकली कंट्रोल कर सकें। तो उसमें जो है आप जाहिर है कि एक चीज को इकोनॉमिक का लफ्ज क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उसको फर्ज करें आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे करते जाएं, जाहिर है कि एक स्टेज आएगी कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात ये है कि वो इकोनॉमिक नहीं रहेगा, वो जो है ना वो बहुत ज्यादा हद तक जो है ना आपका खर्चा हो चुका होगा। तो ये इस वजह से तमाम इंटीग्रेटेड मैनर्स में डिफरेंट जो रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं वो इस तरीके से यूज की जाती हैं, उसमें पेस्टिसाइड को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि आप पेस्ट का इकोनॉमिक कंट्रोल कर सकें। अब हम देखते हैं कि व्हाई दिस आईपीएम शुड बी यूज्ड। आईपीएम जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दैट वाज स्टार्टेड शॉर्टली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें जो सिस्टमिक जो पेस्टिसाइड्स थे वहाँ उसमें बहुत ज्यादा जो है ना उसमें वाइडली अवेलेबल थी। एट द सेम टाइम दिस अप्रोच वाज यूज्ड इन कॉटन बेल्ट रीजन, यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो कॉटन बेल्ट का एरिया था वहाँ भी ये अप्रोच जो है ना वहाँ यूज की गई। और फिर उसके बाद एक वहाँ की नेशनल पॉलिसी बनी, उसमें भी इसमें जो है ना इसको इस आईपीएम के अप्रोच को जो है ना ये लेके आए, उसमें जो है ना वहाँ के डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इंसेक्ट की, उनको इकट्ठे जो है ना इंटीग्रेट किया जा सके। तो फिर उसमें डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस को उसमें वो किया गया कि कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इवन आईपीएम ईयर जो है आप वो किया गया जिसमें सॉइल प्रिपरेशन से लेकर प्लांटिंग और उसके बाद फर्दर जो है ये पूरा एक सिस्टम था, डिफरेंट रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस थी जिसमें केमिकल कंट्रोल भी शामिल था, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी, कल्चरल कंट्रोल भी। फिर उनके थ्रेशोल्ड को देख के उनको मॉनिटर करना, मॉनिटर करने के साथ साथ जो है जो ट्रैपिंग जो आप ये जो फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं उसको लगाना, फिर मौसम के मुताबिक वेदर के मुताबिक उनकी फोरकास्टिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, ये डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस थी अब वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल थी कि उसके मुताबिक आप जो है ना तमाम प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेटेड मैनर में जो है लेके आप इकोनॉमिकली आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो उसमें जाहिर है कि रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेस्ट का रिकॉर्ड रखना कि कितना पेस्ट आया हुआ था, फर्दर कैसे फैल रहा है। आपने देखा, आपको वो होता है ना कि थ्रेशोल्ड देखा है, थ्रेशोल्ड के ऊपर ही आपने जो है ना उसके ऊपर वो करना। अब थ्रेशोल्ड जब आपके पास जो है ना प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होगा तो देन यू कैन यूज पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ थ्रेशोल्ड टू कंट्रोल दैट पेस्ट। तो इस तरीके से जो है ना ये डिफरेंट टेक्निक्स आपस में इंटीग्रेटेड मैनर में जो है ना लेके चलना होता है। देन देयर इज प्लान ऑफ वर्क फॉर द आईपीएम के आप किस प्लान पे काम करेंगे, आप आईपीएम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक होती है फर्स्ट जो एक डिफरेंट फेजेस हैं,
जिसमें जो है ना फर्स्ट फेज होती है जिसे प्रॉब्लम डेफिनिशन फेज कहते हैं, कि एक्चुअली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है कि प्रॉब्लम जो है कौन सा। मींस फर्ज करें कोई पेस्ट है, और वो पेस्ट का कितना प्रॉब्लम है, कौन सा पेस्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना। देन कितना हद तक वो फैल चुका है, प्रॉब्लम फ्रेमिंग, तो वो इसको। फिर उसके बाद जो है जो प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज में डेफिनेशन ऑफ रिसर्च नीड है, इसके ऊपर कितना हद तक जो है काम किया जा सकता है, कितनी जरूरत है इसको काम करने की। एंड देन डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नीड्स, कि अब आप उसके बाद वो देखते हैं कि अब जब रिसर्च हो चुकी है देन आप जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये है प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज के अंदर आप ये सब कुछ करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, उसको फिर फ्रेम करना, उसकी एक्सटेंट को देखना कितना है, देन उसके ऊपर वो रिसर्च वो करनी है इसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि ये कितना हद तक हम इसको ये जो है प्रैक्टिकेबल है, ये कितना उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब दूसरा जो है हम रिसर्च फेज में आए, तो रिसर्च फेज में हम देखते हैं, हमने फर्ज करें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर लिया और उसके बाद जो है जो फ्रेम भी हो गया। अब हम जब रिसर्च की तरफ आते हैं देन देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट रिसर्च स्ट्रक्चर, कि आप कोई प्रॉपर रिसर्च स्ट्रक्चर जो है वो एस्टैब्लिश करें, जो जिसमें डिफरेंट रिसर्च भी डिफरेंट तरह की हो सकती है, जिसमें प्योर रिसर्च होती है, टैक्टिकल रिसर्च, स्ट्रेटेजिक रिसर्च। ये आपको जो है जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपने रिसर्च स्ट्रक्चर आपने वो जो है ना ये करना है कि क्या ये जो है ना क्या ये रिसर्च एप्लीकेबल होगी, क्या ये फार्मर तक ये जो है ना ये इसकी एप्लीकेशन होगी या नहीं होगी, या जस्ट ये रिसर्च जो है इसको यहाँ तक जो है ना रह जानी है। तो ये डिफरेंट तरह की जो आप जो है इसमें रिसर्च आप कर लेते हैं। तो फिर बात नेक्स्ट आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन फेज की, जिसे हमने पहला आइडेंटिफिकेशन देन रिसर्च फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरह आ जाती है कि आपने अब इस चीज को अगर वो रिसर्च इस तरह की है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, आपने किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंच चुके हैं, आप जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, उसमें होगा कि री एवेल्युएशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नीड, कि आप उसको री एवेल्युएट करें। इनिशियली आपने जो जो है ये किया था, इनिशियली आपने जो डिसाइड किया था उसमें अब उसको जो है आप सिविरिटी ऑफ दी प्रॉब्लम को देखते हुए आपको उसको रीवैल्यूएट करना। फिर जो है फार्मर की एवेल्युएशन के फार्मर अब उसको किस तरीके से जो है ना वो कर रहा है, परसीव कर रहा है, फार्मर के उनका फीडबैक होगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस, जब आपने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं फिर जो है उसका एनालिसिस आप करके देखें, फार्मर से डाटा लेके उसका एनालिसिस होगा कि क्या जो है ना कि इसमें एक्चुअली जो एंड कस्टमर था, जो फार्मर था, उससे क्या फर्दर हमारे पास जो है ना उसका फीडबैक आ रहा है। देन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी बेस पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है कि फर्ज करें कि अब जो है ना अगर जो है ना फर्ज करें फार्मर कहता है कि जी एक पर्टिकुलर कोई पेस्ट प्रॉब्लम आया था, रिसर्च भी की गई, हमने जो है उसको एवेल्युएट कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन नीड्स हमने देख ली कि इसको किस किस स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्या ये वास्ट स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हमने उसको री एवेल्युएट कर लिया उसकी नीड्स को, उसके जो है कि इसको स्मॉल स्केल पे प्रॉब्लम था या लार्ज स्केल पे था, लार्ज स्केल पे था तो हमने ये री एवेल्युएट कर लिया कि अब इसको वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन नीड्स की रीवैल्यूएशन हो गई। अब उसके बाद फिर जब फार्मर की वैल्यूएशन होगी कि फार्मर को जो है वहां क्या उसका फीडबैक है, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस जब इम्प्लीमेंट हो चुका था फिर जो है आगे उसका एनालिसिस किया जाएगा क्या वाकई पेस्ट कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, उसका एनालिसिस सारा हुआ। फिर अब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी आपकी फिर उस हिसाब से वेरी करेगी कि ये जो है अब अगर फर्ज करें इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज थी जिसकी वजह से नहीं हुआ, आपको उस हिसाब से फिर उस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करके फिर इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये इस तरीके से आपका जो है ना ये पूरी जो है वो डिफरेंट फेज के अंदर आप जो है ना ये चलते हैं, जो पूरा आईपीएम का जो प्लान होता है। तो देन स्टेप्स फॉर द आईपीएम प्लान अगर हम जाएंगे, इसमें फिजिकल
कल्चरल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो ये डिफरेंट जो है कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको हमने इकट्ठे लेके चलना था। कल्चरल कंट्रोल जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, दैट वाज सैनिटेशन, सफाई वगैरह की, खेत की सफाई रखी। हम देखें उसमें अक्सर आप देखेंगे कि ये जो मैंगो के अंदर ये जो मैंगो की फ्रूट फ्लाई है ये बहुत ज्यादा आ जाती है। अब कहा ये जाता है जो नीचे फल पड़ा हुआ है इस फल को जो है ना ये डिस्पोज ऑफ करें, तो जो नीचे गिर गया हुआ है ये जाहिर है कि एक सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टिलिजन इंटर कल्टीवेशन है कि जब आप हल चलाते हैं तो पीछे से कुछ जो है जो इंसेक्ट के एग्स वगैरह वो हैं इस तरह के वो जमीन के ऊपर आते हैं, फिर कुछ परिंदे आकर उनको खा रहे होते हैं। तो ये भी जब आप कभी गौर से देखें ट्रैक्टर चलने के बाद फिर ये जो टिलेज की वजह से कुछ उसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं परिंदे, ये भी एक तरह से कल्चरल कंट्रोल। देन कल्टीवर्स की सिलेक्शन ऐसी करें कि जो कल्टीवर्स बहुत तेजी से फैलने वाली हो, बहुत जल्दी से ग्रो कर जाए, तो वो उनकी हेल्थ बहुत हो। टाइम ऑफ सोइंग हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि टाइम ऑफ सोइंग जो हमारे पास स्लॉट है उसी में हमने टाइम ऑफ सोइंग को हम मैनेज करना है। प्लांट पॉपुलेशन कम रखेंगे, जाहिर है उसमें भी हमारे लिए वीड्स बहुत फैलेंगी। अगर हम प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम हमने मेंटेन करनी है, ज्यादा भी कर लें। ये कॉटन में एक नैरो रो, अल्ट्रा नैरो रो का कंसेप्ट आया था जिसमें एक एक फुट के फासले पे कॉटन लगाई जाती थी। अब उसमें मेन प्रॉब्लम क्या था, उसमें पेस्ट बहुत ज्यादा आ जाता था। तो ये जो है ना ये फिर वगैरह इस जगह के ऊपर इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए। प्लांट पॉपुलेशन हमेशा ऑप्टिमम रखनी चाहिए, तो उसमें जो है ना ताकि वो प्रॉपरली हर चीज कंट्रोल की जाए। फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हैं, जाहिर है कि जो वीड्स हैं वो भी एक अपना शेयर ले रही हैं। वीड्स बीइंग अ पेस्ट बहुत सारा अगर वो न्यूट्रिएंट का शेयर ले लेती है, जाहिर है क्रॉप को नहीं मिलता, तो ये भी एक तरह से जो है ना आपको प्रॉपर ऑप्टिमम डोजेज राइट मैनर के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा था, राइट प्लेस पे राइट मैनर के अंदर राइट टाइम के ऊपर हमने अप्लाई करनी है। फिर वाटर मैनेजमेंट प्रॉपरली है, इसी तरह हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, ये डिफरेंट तरह की जो है चीजें हमें इस हवाले से कल्चरल कंट्रोल के हवाले से हैं। देन देयर इज दी मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल मेथड में ये यूज ऑफ ट्रैप्स हैं, जो हम ट्रैप या बैरियर्स या फिजिकल रिमूवर आप फिजिकली रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास इतना फैसिलिटीज हों। देन एंटी ट्रांसपायरेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की जो है ना मैकेनिकल कंट्रोल मेजर्स भी जो है ना यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये जो है ना वो वीड्स के लिए पर्टिकुलरली एंटी ट्रांसपायरेंट इस तरह का चीजें जो है ना वो यूज की जाती हैं। इसी तरह से कुछ जो है ये बिहेवियरल मेथड्स भी हैं जिसमें हमने ये फेरोमोन ट्रैप का जो है ना वो जिक्र किया। तो फेरोमोन ट्रैप जो है ना यूज किए जाते हैं, जैसे आप ये देखते हैं कि मैंगो की फ्रूट फ्लाई के लिए जो है इसी तरह ये जो है ना डिफरेंट तरह के ये बिहेवियर को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं। तो एक्टो हार्मोन्स will which elicit behavior response for the other members of its own species। तो ये बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, हाईली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये जो है ना इस तरीके से जो वॉलेटाइल होते हैं, ये आप